Hello friends, it's quite nice that many of the students, almost 70 to 90% students, send me their notes and homework on a regular basis. But the thing is, even I am not able to measure or able to assume or able to understand that how many of you are getting the things, are understanding the all the things, all this content very nicely. वो मुझे पता नहीं चल रहा है. So almost more than 50% students come to me means they WhatsApp me, they call me and ask me, sir, this how this step come, how did you solve by this method, or they keep sharing with me their doubts and their questions, their queries. Okay, so whenever it become possible for me, I give reply to them, I give solution to them. तो इस तरह से उनकी क्वेरी सॉल्व हो जाती है. तो आई एम आस्किंग ऑल ऑफ यू अगेन दैट इफ यू आर हैविंग एनी क्वेरी और डाउट्स, यू कैन डायरेक्टली कॉल मी और यू कैन मैसेज मी. आप मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हो. जब भी मुझे टाइम मिलेगा, जब भी आई विल बी फ्री, आई विल गेट बैक टू यू एज सून एज इट बिकम पॉसिबल. ओके, अदरवाइज क्या होगा कि आई एम पुटिंग सो मच एफर्ट्स टू मेक द videos and give you the this knowledge, but the thing is कि if you are not able to understand, okay, then there is no use of all this doing all these efforts. Okay, so I am requesting you again, if you are not getting anything, you are having any doubts or if you are having difficulties, you can be very free to contact me. Okay, तो इससे वजह से क्या होगा कि आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम होगी तो आपकी वो सॉल्व हो जाएगी. Okay, now we are seeing example 9 and example 10. Okay, as we know, this is exercise 2.2 and this is the 9th example. Here in this example I have just changed the value, some value, otherwise the sentences are as it is. मैंने उसकी कुछ वैल्यू चेंज कर दी है. ओके, तो इफ यू आर हैविंग टेक्स्ट बुक, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक भी है तो you would be able to see this कि I have changed some names over here as well as the value over here. तो मैंने इसलिए चेंज की है कि if I will give you the same example that have been given in already in text book, तो क्या होगा कि अगर आपके सामने कोई नया एग्जांपल आएगा तो आप स्टक हो जाओगे, आप यहाँ पर रुक जाओगे, आप सॉल्व कर नहीं कर पाओगे. इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ वैल्यू चेंज की है. बेस्ड ऑन दिस एग्जांपल, इस एग्जांपल के बेस पर आई विल गिव यू वन एग्जांपल टू सोल्व बाय योरसेल्फ. वो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको लिखकर भेज दूंगा. जहाँ पर मैं उसकी जगह कुछ वैल्यू चेंज कर दूंगा, नेम्स चेंज हो जाएंगे और ये चेंज हो जाएगा. जो सेम एग्जांपल हमारे टेक्स्ट बुक में शायद मैं वही भी दूंगा. ओके, तो आपको वो सोल्व करना है. बट टू सोल्व दैट एग्जांपल you need to understand this example very well, otherwise you will not be able to solve that example. Okay, so example 9 is saying us that the ages of Arjun and Geeta are in the ratio 6:4. अर्जुन और जो गीता है, okay, just a second. Okay, so I was saying कि अर्जुन एंड गीता, the ages of Arjun and Geeta are in the ratio of 6:4. अर्जुन और गीता की जो एज है वो 6 और 4 के रेशियो में है. तो मैंने पहले भी आपको कहा था कि जब भी आपको रेशियो दिया जाए तो पहले नंबर सपोज 6 दिया गया है तो यू विल एज्यूम 6x एंड सेकंड आपको 4 दिया गया है तो आप यू विल एज्यूम 4x. ओके, तो आप अर्जुन की एज क्या एज्यूम करोगे 6x एंड गीता की एज होगी 4x. ओके, let's first assume you need to go step by step. You understand the sentences, make the interpretation of what the sentence is saying to us, and according to the sentence put your assumptions. Okay, so first assumption is I will say assume, or you can use suppose word also. Assume the age of Arjun. Assume the age of Arjun is x. You can write over here also x. What is x? X here. उसकी अर्जुन की एज कितनी है? x here.
We do not know the age of Arjun. That's why we have assumed the age x here. जब भी आपको ईयर दी गई है, एज दी गई है, तो आपको ईयर में एज्यूम करना है. सपोज की स्पीड दी गई है तो हम किलोमीटर में एज्यूम करेंगे. सपोज की मनी दिया गया है तो हम उसको रुपीस में एज्यूम करेंगे. यहाँ पर हमें एज दी गई, दैट्स व्हाई आई हैव एज्यूम द एक्स ईयर. ओके, एंड एज ऑफ गीता इज 4x. ओके, अर्जुन की एज कितनी होगी? नॉट x, हाउ? 6x. मिस्टेकनली आई हैव रिटन x ओवर हियर. वो x नहीं होगी, कितनी होगी? 6x. जो भी आपको प्रोपोर्शन दिया गया है, जो भी आपको रेशियो दिया गया है, बेस्ड ऑन दैट यू विल एज्यूम द एज. ओके, तो अर्जुन की एज होगी, द एज ऑफ अर्जुन इज 6x ईयर एंड द एज ऑफ गीता इज 4x ईयर. 4x years. You can put years also, it's because it's a plural. Okay, तो अर्जुन की हमने एज की 6x और गीता की 4x. ये मैं बात इसलिए बहुत धीरे से और बार बार बोल रहा हूँ कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सिग्निफिकेंट टू अंडरस्टैंड कि जब जो भी आपको रेशियो दिया गया है, द एजेस ऑफ अर्जुन एंड गीता आर इन द रेशियो ऑफ 6:4. तो जो आपको रेशियो दिया गया है उसके अकॉर्डिंगली आपको एज एज्यूम करनी है. तो आई हैव रिटन कि assume the age of Arjun is 6x year and the age of Gita is 4x year. Here is 6x, here is 4x. Okay. Now what is second sentence is saying to us? 5 years later. 5 years later. यानी कि 5 सालों के बाद. 5 years later. Okay. 5 साल के बाद. This is very confusing thing. कि 5 years later. Suppose my age is 25 years. So my age after 5 years will be 30. Okay, my age after 5 years will be 30. 25. So how I am getting 30? I just added 5 into 25. 25 plus 5. I got 30. But after 5 years, your ages will be also added 5 years. 5 साल के बाद. Suppose this is 2020 is going on 2020 2020 चल रहा है अभी 2020. ओके, सो इन द 2020 माय एज इज 25. मेरी एज अभी 25 है और आपके सपोज योर एज इज 13 ईयर. सो आफ्टर इन 2025 my age will be 30 and your age will be 30 plus 5, it means 80. आपके एज में भी 5 ईयर ऐड हो जाएंगे, मेरी एज में 5 ईयर ऐड हो जाएंगे. तो यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि 5 years later, 5 सालों के बाद, the sum of their ages, उन दोनों के एज का, the sum of their यानी उनके एज कितना हो जाएगा? 90. 5 सालों के बाद, the sentence is saying कि after 5 years, the sum of their ages will be 90. यानी कि 5 सालों के बाद उन दोनों की एज का जो सम है यानी कि एडिशन है वो कितना हो जाएगा? 90. यानी कि मेरी एज अभी प्रेजेंट एज मेरी कितनी है? 25. तो मेरी आफ्टर 5 ईयर माय एज विल बी 30. और कोई एक और बंदा है जिसकी एज है अभी सपोज के 22. तो आफ्टर 5 ईयर ही विल बी ऑफ 27 इयर्स. सो उसकी 27 और 5 साल के बाद उसकी होगी 27 और मेरी 5 साल के बाद होगी 30. तो उन दोनों का एडिशन कितना होगा? 30 प्लस 27, इट मींस 57. ये 5 साल के बाद का उनका जो एज होगी उनका सम हमें दिया गया है 90. तो हाउ वुड आई फ्रेम द इक्वेशन? यहाँ पर मैं कैसे इक्वेशन फ्रेम करूंगा, ध्यान से समझना कि अर्जुन की एज कितनी है अभी? 6x. तो अर्जुन की एज 5 साल के बाद कितनी हो जाएगी? 6x प्लस 5. कैसे? सपोज कि अर्जुन की एज 20 ईयर होती, सपोज कि अर्जुन की एज 20 ईयर होती, तो 5 साल के बाद उसकी कितनी एज हो जाती? 20 प्लस 5. यस. सपोज कि अर्जुन की एज 30 इयर्स होती, 30 years. So after 5 years, his age will be 30 plus 5, right? तो अर्जुन की अभी एज 6x है. तो 5 years, after 5 years, his age will be 6x plus 5. जो भी प्रेजेंट एज है, उसमें आप 5 ऐड कर दो. तो 5 साल के बाद अर्जुन की एज कितनी हो जाएगी? 6x plus 5. यस. और उसी के साथ गीता की भी तो एज बढ़ेगी. जैसे कि अर्जुन की एज बढ़ेगी तो गीता भी की
गीता की भी तो एज बढ़ेगी। गीता की एज अभी है 4x, तो उसकी भी कितनी हो जाएगी 5 साल के बाद 4x + 5 हो जाएगी। ऐसा तो होगा नहीं कि उसकी 5 साल बढ़ेगी और उसकी 6 साल बढ़ेगी, दोनों में 5 के ऐड हो गए। ओके, आफ्टर 5 ईयर, तो हमें 5 सालों के बाद की दोनों की एज मिल गई। 5 साल के बाद अर्जुन की एज कितनी होगी 6x + 5 और गीता की एज कितनी होगी 4x + 5। ये 5 साल के बाद की एज है, 5 साल के बाद की एज है। तो 5 साल के बाद की जो उनकी एज है उन दोनों का सम कितना होता है 90। ये हमें दिया गया है, ध्यान से समझ लो फिर से। 5 साल के बाद अर्जुन की एज ये होगी, गीता की एज ये होगी, और इन दोनों के एज का जो सम है वो कितना होगा 90 ईयर होगा। ये हमें सेकंड सेंटेंस हमें ये कह रहा है कि the 5 years later the sum of their ages will be 90। 5 सालों के बाद उनकी दोनों के एज का जो एडिशन है वो 90 हो जाएगा। एक बार हमने इक्वेशन बना दिया, उसके बाद आप उसको इजीली बहुत सॉल्व कर सकते हो। और एक बार हमें x मिल गया, फिर x की वैल्यू हम यहाँ पर पुटअप कर लेंगे तो हमें उनकी एज मिल जाएगी। लेट्स सी, 6x + 4x is a 10x and 5 + 5 is 10 is equal to 90। It's very easy to understand. I hope it's very easy to understand now, because the similar type of equation we have already seen many equation like this। हमने इस तरह के पहले भी बहुत सारे देख लिए। तो you will be very familiar, you should be very familiar like the equation like this। इस तरह के इक्वेशन से आप बहुत अभी फेमिलियर हो जाने चाहिए। ओके, so 10x + 10 is equal to 10। So I have written 10x as it is, this 90 as it is, and this 10 will go to the right side। 10x as it is, 90 - 10 would be 80। Okay, so x will be 80 divided by 10, this 10 will go into the denominator, so 80 divided by 10, what will happen, 80 divided by 10, 0 will be cut, so x is equal to 8। हमें x की वैल्यू मिल गई। See, after you frame the equation, your sum will be very easy। Most important thing is how to assume the things as well as how to frame this equation। After your sum, it will be quite easy। Okay, and second thing, if I want to divide this sum into 4 parts, अगर मैं इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहूँ तो पहला पार्ट होगा कि इसको एज्यूम करो, सेकंड पार्ट होगा कि इक्वेशन फॉर्म करो, थर्ड पार्ट होगा कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, एंड लास्ट फोर्थ पार्ट होगा कि जो भी आपको x की वैल्यू मिले वो आप यहाँ पर सबमिट कर दो। आफ्टर सबमिटिंग द वैल्यू ऑफ x you will get your answer। ओके, सो हमें x की वैल्यू 8 मिल गई, मैं यहाँ पर रख दूंगा। हमें क्या कहा था कि व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, उनकी हाल की यानी कि अभी की एज कितनी होगी, तो अभी की एज हमने कितनी एज्यूम की थी 6x। ओके, सो द एज ऑफ अर्जुन, द एज ऑफ अर्जुन कितनी थी 6x। ओके, 6x थी, राइट। इन द प्लेस ऑफ x व्हाट शुड आई पुट, आई विल पुट 8। x की जगह पर मुझे कितनी मिले हैं, x की वैल्यू कितनी मिली है 8, तो x की जगह पर मैं कितने रख दूंगा 8। ओके, सो 6x, 6 और 8, x की जगह पर कितने रखने मुझे 8, बट आई कैन नॉट पुट लाइक दिस, 6 का 6 वैसा का वैसा, और x की जगह में 8 रख दूंगा, ये तो कितने बन जाएंगे 68। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको ब्रैकेट में रख सकता हूँ। Moment I do the bracket over here, it means the relation between 6 and 8 is multiplication। अगर मैं यहाँ पर इस तरह का ब्रैकेट नहीं करता हूँ तो it would look like a 68। तो आपको इस तरह से ब्रैकेट कर देना है, और you can put the side of multiplication also between these two, 6 and 8। और आप पूछोगे सर आपने कहा था कि 6 और 8 के बीच में अगर कोई भी साइन ना हो तो इट इज ऑलवेज अंडरस्टूड एज अ मल्टीप्लिकेशन। लेकिन कब, कि जब दोनों के दोनों डिफरेंट नंबर हो, सपोज कि यहाँ पर 6 है
और यहाँ पर x है, यहाँ पर दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि here not need to do the sign of multiplication because this is a variable and this is a number, तो ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन भी शो करता है। लेकिन मैंने अगर कोई भी नंबर लिख दिया 6 और 8 तो this will look like a 68, that's why I need to do a bracket over here. So again I have written 6 as it is and in the place of x I have written 8. Now 6 8s are, can you say what is 6 8s are? 6 8s are 48 here. You need to write years also. 48 क्या है? 48 years है। तो किसकी एज मिली हमें? अर्जुन की एज। अर्जुन की एज कितनी होगी? 48 years. That similarly you can also find the age of गीता। एज ऑफ गीता कितनी थी? 4x. So 4 and in the place of x I will put 8. So 4 8s are 32 years. इस तरह से आपको दोनों की एज मिल सकती है। Now based on this example, I will give you one example to solve by yourself. That would be I will just change the name अर्जुन एंड गीता में नेम चेंज कर दूंगा, मैं आपका रेशियो चेंज कर दूंगा और आपका एडिशन चेंज कर दूंगा। आपको सेम मेथड से वो एग्जांपल सॉल्व करना है। ओके, नाउ 10th example is the number of boys and girls in a class are in the ratio of 7 to 5। एक क्लासरूम है जिसमें बॉयज और गर्ल्स, कुछ बॉयज है और कुछ गर्ल्स है, उन दोनों की उनकी जो स्ट्रेंथ है उनका रेशियो कितना है? 7 to 5। अगेन रेशियो है कम, यहाँ पर भी रेशियो था, यहाँ पर भी रेशियो था, तो हमने क्या किया था? जो रेशियो जो पहला नंबर था वो 6x एज्यूम किया, सेकंड को 4x एज्यूम किया। सिमिलरली हियर आल्सो द फर्स्ट वुड बी 7x एंड सेकंड वुड बी 5x। लेकिन वो क्या है? वो है द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। तो बॉयज कितना होगा? 7x एंड गर्ल्स कितनी होगी? 5x। यहाँ पर अर्जुन एंड गीता था तो अर्जुन एंड गीता एंड रेशियो वाज 6 and 4, तो अर्जुन कितना हो गया था? 6x एंड गीता 4x। सिमिलरली हियर आल्सो द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास इन द रेशियो ऑफ 7 to 5, तो बॉयज वुड बी 7x and girls would be 5x. So I can assume like this. Okay, suppose I can write suppose the number of boys is 7x. Here I do not need to write anything years or kilometers. Why? Because it's a number और नंबर के पीछे हम कुछ भी नहीं लिखते। Okay, and the number of girls is 5x. Second is 5x. मतलब एक तरह का क्लासरूम है जिसमें कुछ गर्ल्स है और कुछ बॉयज है, जिसका नंबर हमें नहीं पता कि कितनी गर्ल्स और कितनी बॉयज है। That's why I have assumed कि 7x और 5x है। जब भी हमें x मिल जाएगा उसकी वैल्यू पुट अप करेंगे तो हमें उसकी एक्चुअल रेंथ, ओके, उसकी एग्जैक्टली स्ट्रेंथ हमें मिल जाएगी। ओके, नाउ सेकंड सेंटेंस इज द नंबर ऑफ बॉय यानी कि जितने बॉयज के नंबर है is 8 more than the number of girls, यानी कि the number of boys is 8 more than the number of girls। इसका मतलब है कि जो बॉयज की नंबर्स है, बॉयज की जो स्ट्रेंथ है वो गर्ल्स की स्ट्रेंथ से 8 ज्यादा है, 8 मोर। ओके, 8 मोर। सपोज कि गर्ल्स की स्ट्रेंथ 40 है तो बॉयज की कितनी होगी? 40 plus 8 48। सपोज कि गर्ल्स की स्ट्रेंथ 24 है तो बॉयज की कितनी होगी? 24 plus 8 इट मींस 32। आपको 8 ऐड कर देने हैं। क्यों ऐड कर दें? क्योंकि we have been told कि 8 more than number of गर्ल्स से 8 ज्यादा है बॉयज की स्ट्रेंथ। ओके, सो बॉयज की स्ट्रेंथ कितनी है? 7x। अभी हमारे पास एक्चुअल नंबर तो है नहीं कि मैं कह दूं कि गर्ल्स की
35 है तो बॉयज की कितनी हो जाएगी 35 प्लस 8 यानी कि 43 हो जाएगी। अब मेरे पास एग्जैक्टली वैल्यू तो है नहीं, मेरे पास खाली एज्यूम किए हुए नंबर है कि गर्ल्स की कितनी है 7x और बॉयज की कितनी है, गर्ल्स की 5x और बॉयज की 7x। तो आई एम गोइंग टू फ्रेम द इक्वेशन। बी वेरी केयरफुल, दिस इज अ ऑलमोस्ट 90% चिल्ड्रन मेक्स मिस्टेक ओवर हियर, क्योंकि ये सम इस तरह का है। तो ध्यान से देखिएगा 7x और 5x। ओके, मैं हैव रिटन 7x 5x। व्हाट इज 7x? 7x क्या है? 7x इज द नंबर ऑफ बॉयज। 7x क्या है? बॉयज के नंबर है, यानी कि बॉयज की जितनी स्ट्रेंथ है वो है। व्हाट इज 5x? 5x है गर्ल्स के नंबर। गर्ल्स कितनी है? वो 5x है, एंड दिस इज द बॉयज। ये बॉयज है और ये गर्ल्स है। नाउ हमें क्या कहा गया है? द नंबर ऑफ बॉयज, द नंबर ऑफ, ध्यान से समझना, द नंबर ऑफ बॉयज, द नंबर ऑफ बॉयज, जो बॉयज की स्ट्रेंथ है इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। जो बॉयज है वो उससे 8 ज्यादा है। ये कितने ज्यादा है? उससे 8 ज्यादा है। ध्यान से समझना कि कोई भी चीज, सपोज आई एम हैविंग अ weight measuring instrument. If you go to the shopkeeper, you will be easily see they are using a weight measuring instrument. Okay, जिसमें वो weight करते हैं. They put measuring suppose उनका 1 kilogram. Suppose they put a 1 kilogram over here. So they give the same amount of the vegetables or ghee or oil or whatever you went there to buy. Okay. अगर उसके भी उसमें उसके जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें कुछ चीज कम पड़ती है तो उसकी उतनी चीज वो उसमें ज्यादा डालेगा टू मेक अप बैलेंस। उसका जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट उसमें बैलेंस करने के लिए, अगर यहाँ पर कम बढ़ रहा है तो वो यहाँ पर कुछ रखेगा, यहाँ पर कम बढ़ रहा है तो वहां पर कुछ रखेगा। अगर वो ऊंचा नीचा, इट मींस ऊपर या नीचे नहीं होना चाहिए। टू मेक अ एग्जैक्ट बैलेंस ही विल पुट अ नेसेसरी थिंग्स, माइट बी दिस साइड और माइट बी दिस साइड। Same thing we need to do here कि बॉयज की जो स्ट्रेंथ है वो ऑलरेडी गर्ल्स की स्ट्रेंथ से 8 ज्यादा है। ये जो है इससे 8 ज्यादा है, तो मुझे 8 किस और डालना पड़ेगा? सपोज ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है अपना, वेट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये जो है बॉयज है वो गर्ल्स से 8 ज्यादा है, ये जो है वो उससे 8 ज्यादा है, तो मुझे 8 कहां पर रखना पड़ेगा? यहाँ पर, टू मेक अ बैलेंस। नाउ व्हाट हैपेंस इज ऑलमोस्ट 90% चिल्ड्रन एडेड 8 ओवर हियर। वो 8 यहाँ पर ऐड करते थे, यहाँ पर 8 ऐड नहीं हो गए। क्यों? क्योंकि ये तो ऑलरेडी ज्यादा है, ये इससे ऑलरेडी 8 ज्यादा है। टू मेक अ बैलेंस मुझे 8 यहाँ पर ऐड करना है। एक बार आपको ये समझ आएगा, नाउ योर एग्जांपल बिकेम वेरी इजी। नाउ यू कैन मूव दिस 5x इनटू द लेफ्ट साइड। यहाँ पर 7x है, यहाँ पर 5x है। 5x कैसे है? प्लस है। 5x कैसे प्लस है? सो इफ आई going to move this 5x into the left side, तो ये प्लस है वो कैसे बन जाएंगे? -x बन जाएंगे। I have written 7x as it is, this is equal to as it is, this 8 as it is. What I just not written, मैंने क्या नहीं लिखा? मैंने 5x नहीं लिखे। तो 5x अगर इस ओर आ जाएंगे यानी कि 7x के पास आ जाए तो क्या बन जाएंगे? -5x बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये प्लस थे, इस ओर जाते तो माइनस बन जाते। इट्स अ रूल, whenever you are having a plus sign, if it will go the opposite side, opposite side mean अगर लेफ्ट में है तो राइट में जाए और राइट में है तो लेफ्ट में आए, तो its sign will be changed। उसकी साइन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। So 7x minus 5x is a 2x, right? 7x में से 5x चले जाए तो कितने x बचेंगे? 2x बचेंगे, is equal to 8। So x is equal to 8 divided by 4, sorry 8 divided by 2, so x is equal to 4। हमें x की वैल्यू मिल गई। Now you just see how easy our example is। हमारा एग्जाम्पल कितना इजी है। मेन थिंग इज कि how to assume the things and how to frame the equation। ये जो अगर ये दो चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, then after your example will be very easy। हमें एक बार x मिल गया, उसके बाद जो भी हमें x की वैल्यू आई मिली है वो हम जो हमने एज्यूम किया था वहां पर रख देंगे। हमने क्या एज्यूम किया था? नंबर ऑफ बॉयज, तो नंबर ऑफ बॉयज विल बी, आई कैन राइट ओवर हियर आल्सो, द नंबर
ऑफ बॉयज कितने थे 7x इज 7x, इट मींस 7 और इन द प्लेस ऑफ x की जगह मैं क्या रखूंगा, x की जगह पर रखूंगा मैं 4। सेम थिंग वी हैव डन ओवर हियर, जैसे हमने यहाँ पर किया था 6x, x की जगह पर हमने जो भी वैल्यू मिली थी वो हमने पुट अप कर दी, x की जगह पर 8, यहाँ पर भी x की जगह पर 8। सेम थिंग x की जगह पर मुझे 4 मिले तो 7x थे 7x, तो x की जगह पर मैं कितने रखूंगा 4, तो 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 एंड the number of girls is 5x, 5x 5 और x की जगह पर मुझे रखना है अगेन 4, सो 5 4 जा 20। यानी कि देखो इफ यू कैन वेरीफाई योर आंसर आल्सो, हमें आपको बॉयज के नंबर कितने मिले, बॉयज कितने हो गए क्लास में 28 और गर्ल्स कितनी है क्लास में 20, उन दोनों का प्रोपोर्शन चेक कर लो। अगर आपको रेशियो चेक करना है कि इज योर आंसर करेक्ट और नॉट, यू कैन वेरीफाई योर आंसर। कैसे, आप चेक कर लो। चलो 28 डिवाइड बाय 20 कर लीजिए, हम 28 डिवाइड बाय 20 करते हैं तो कितना आंसर मिलेगा हमें, which number I can cut both the number, मैं कौन से नंबर से दोनों को कट कर सकता हूँ, can I cut this number with 4, 4 7 are 28 and 4 5 are 20, तो दोनों का रेशियो मुझे मिल गया 7/5। अब सेकंड सेंटेंस क्या था कि जो बॉयज की स्ट्रेंथ है वो गर्ल्स से कितनी ज्यादा है, 8 ज्यादा है, 8 is 8 more, तो आपको मिल गया 28 is 8 more than 20, जो 28 है वो 20 से 8 ज्यादा है, तो योर आंसर इज वेरी करेक्ट। आपको ये लिखना नहीं है, जस्ट टू मेक योर आंसर वेरीफाई आई हैव जस्ट एक्सप्लेन यू, आपको लिखना नहीं है। हमें लेकिन क्या पूछा गया था, हमें ये नहीं पूछा गया कि फाइंड आउट द स्ट्रेंथ, फाइंड आउट द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। अगर ये पूछा गया था तो दिस वुड बी योर अल्टीमेट आंसर, बट व्हाट वी हैव बीन आस्क्ड इज कि व्हाट इज टोटल स्ट्रेंथ, व्हाट इज टोटल स्ट्रेंथ, यानी कि क्लास की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, टोटल स्ट्रेंथ कितनी होगी, दोनों का एडिशन कर दो, 28 प्लस 20 इज कितनी हो जाएगी, 20 प्लस 28 48, ये क्या होगी क्लास की टोटल स्ट्रेंथ। ये तो कोई भी कर सकता है, खाली दोनों का एडिशन ही करना है। ओके, सो टोटल स्ट्रेंथ, टोटल स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 28 प्लस 40 इज इक्वल टू 28 plus 20, I'm sorry, is equal to 48. Okay, 22 plus 40, 22 plus 20 is equal to 48। इस तरह से आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो इसके बेस पर मैंने कहा था जिस तरह की मैं आपको एग्जांपल करूंगा तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ ले, दोनों के दोनों एग्जांपल को, एंड बेस्ड ऑन दिस एग्जांपल आई विल गिव यू वन एग्जांपल टू सॉल्व योर बाइसेप। तो अच्छे समझ लो। अगेन आई एम सेइंग इफ यू आर हैविंग एनी क्वेरी और एनी डाउट टू अंडरस्टैंड, suppose any of the student are not able to get that how did you bring this step, अब ये स्टेप कहाँ से लाए, तो यू कैन आस्क मी सर कि मुझे यहाँ पर समझ नहीं आया तो मैं समझा दूंगा, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑल दिस सम वेरी nicely. Okay, thank you.